समय और प्रार्थना के साथ जो है हम आज आगे बढ़ते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। ये सुबह के समय प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं, आपको प्रभु हमारे जीवन से ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपको आदर देते हैं प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह आप आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य, महिमा के योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं आपके उस पवित्र बलिदान के लिए जो हमारे लिए आपने उस क्रूस पे किया। इसकी वजह से आज हम प्रभु इस भवन में हैं, आपकी आराधना कर सकते हैं, आपके समूह गा सकते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, जो प्रतिदिन हमें ताजा करता है, प्रतिदिन हमें जो है आपकी ओर देखने में, आपकी महिमा करने में मदद करता है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते इस समय प्रभु आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आप अगुवाई करना। और प्रभु आज इस सभा में होने वाले गीत आपके हाथों में सौंपते हैं, आराधना टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं, गीत गाने में, आराधना करने में मदद करना परमेश्वर। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं गॉड इस समय जो वचन बांटा जाएगा परमेश्वर, वो वचन भी परमेश्वर आप आशीषित करना। और फिर मैसेज, मेन मैसेज आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा और गौर हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए, प्रभु का शोषण के लिए। जब वो इस समय मेरे सवाल में है परमेश्वर, वहाँ पर प्रभु जो भी आपने उनके ईश्वर में सेवा दी प्रभु कर रहे गौर, उनको भी आप सहायता करना, मदद करना और प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आज की सभा आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अगुवाई करना, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
all gathered here, Lord God, in your name, Father, Lord God. That we are grateful, Lord God, and we are so graceful that we come in your presence, Lord God, each day, Lord God, to worship you, Lord God, to lift up your name, Father, Lord God. We thank you that you help us in our daily basis, Lord God. You help us to each and every second of our life, Father, Lord God. That you take care in whatever problems we have, Lord God, that you know everything, Lord God, because you have given us this life, Father, Lord God, to live for you, Lord God. And we hope that we get to spread your name all over the world, Lord God, to know that you are the true and living God, Father, Lord. Thank you for this day, Lord God. Keep blessing us, Lord God. Fill us with your grace in this presence as we sing for you, Lord. Amen. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship. Sing that once more. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Yes, Father, we are so grateful that we worship your holy name, Father, Lord God, and no one other, Lord God. That we get easily, Lord God, to live for you, Father, Lord God. That you bless us, Father, Lord God. You've given us grace, Father, Lord God. The greatest grace, Father, Lord God. That you died for us on that cross, Lord God. That you took away all our sins, Lord God, all our flaws. That you
you make us secure, Lord God, in everything, Father, in our and under our skin, Lord God, that you make us strong and secure, Lord God, each day, Father, Lord God, because we believe in you, Father, Lord God. We thank you so much, Lord God, that we are gathered here, Father, in your presence, Lord God. Bless our service, Lord God. Bless the word that is going to be shared, Father, Lord God. And bless each one of us who is gathered here, Father, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Once again, good morning, church, सभी को सुप्रभात। and welcome everyone to this Sunday morning service. सभी का स्वागत है इस रविवार सभा में। Really, that was a beautiful worship. बहुत अद्भुत आराधना था। Like when it comes from your heart and you sing to God, God is pleased. जब हम हृदय से गाते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। Remember, Pastor said today he won't be there this Sunday because he's preaching in Andheri Church, पास्टर ने कहा कि आज वो यहाँ पर नहीं है, वो अंधेरी में है। and the worship team they did a great job. जो आराधना का टीम था वो बहुत अच्छा काम किया। And what makes it more beautiful when it comes from your heart. वो अच्छा खूबसूरत तब होता है जब वो हृदय से आता है। So let's give a big hand to the worship team. So few announcement. कुछ सूचनाएं। This month on 26th of February, ये महीना 26 फरवरी को there's a youth time planned. युवा का समय है। So it's a public holiday that day. वो पब्लिक हॉलिडे है। So in case you have not no other plans, अगर आपके पास कोई और योजना नहीं है then please block this day. तो इस दिन को आप बुक कीजिए। So the more details about this will be shared on WhatsApp group. इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी जो है व्हाट्सएप ग्रुप में बताया जाएगा। And next month, और अगले महीने that is month of March, जो मार्च का महीना है, maybe around mid of March, जो मार्च का बीच का महीना होगा, वो our church is planning for a short camp. हमारे चर्च का एक छोटा कैंप होगा। Maybe it will be like an overnight camp एक पूरा रात का होगा, for one night and next day. एक रात और अगले दिन सुबह। So the plan is for somewhere nearby, जो योजना है वो बाजू में ही कहीं पे होगा, so that maximum people from our church can be there. ताकि बहुत सारे हमारे कलीसिया के लोग आ सके। And the plan is to have it on a public holiday. और वो हमारे छुट्टियों के दिन में ही होगा। So since it is not yet finalized yet, तो अभी तक उसका हुआ नहीं है so पक्का, I'm not sharing the exact date and the venue. इसलिए तारीख और जगह बताया नहीं जा But रहा है। again, we will keep you updated. पर हम बताएंगे जल्द ही। But we want everyone from our church to be there, हम चाहते हैं कि हमारे कलीसिया के हर एक लोग उस आए, especially since it's nearby. क्योंकि वो बाजू में ही होगा कहीं पे। So as many are already aware that Bible college is already begun. तो आप सबको पता है कि बाइबल क्लास की शुरुआत हुई है। So in case if you are doing it, please submit your assignments on अगर आप time. कर रहे हैं तो असाइनमेंट दीजिए। And in case if you are still considering to take Bible college, अगर आप अभी भी चाहते हो कि बाइबल क्लास लेना है, you can approach pastor, आप पास्टर को बता सकते or you हैं। can meet brother Gunwant also. गुरमत भैया को भी मिल सकते हैं। So also want to know tell you that there is an option to just attend the Bible college एक ऑप्शन है कि हम सिर्फ बाइबल क्लास कर सकते हैं, सुन सकते हैं online, ऑनलाइन में। because many are not able to attend. They say I have work. बहुत सारे लोग जो है वो बाइबल क्लास लाइव कर नहीं पाते हैं। So we have started an online Bible college तो too, ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है। and you can can do the class as per your convenience. तो आप जो क्लास जो है वो आपके मुताबिक आप कर सकते हो। And also in case if you do not want to submit assignments, अगर आपको असाइनमेंट भी नहीं दे सकते हैं, just you want to hear and get encouraged by the word of God, पर आप सुनना चाहते हो और प्रोत्साहन पाना चाहते हो, still you can do the class as a audit student. तो आप ऑडिट के तौर पर कर सकते हो। Same way, more details you can contact us. इसकी जानकारी के लिए आप हमें मिल सकते हो। So for the offering, let's welcome Brother Gunwant. भेंट के संदेश के लिए गुरमत भैया का स्वागत करते हैं। सबको जय मसीह की। यस, ये जो है दान का संदेश है। मेरे साथ प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं भजन संहिता उसका 121 और एक पंक्ति से यहाँ पे बोलता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। यहाँ पे प्रश्न है ना। वो बोलता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और हम जानते हैं कि विश्वासी होने के नाते हमारी सहायता कहाँ से आती है, परमेश्वर की ओर से आती है ना।
बहुत सारे लोग जो है अपने योग्यता के ऊपर अपनी आंखें लगाते हैं, है ना, अपने जो है कमाई के ऊपर जो निर्भर हो जाते हैं। लेकिन एक विश्वासी जो है हमेशा किसके ऊपर निर्भर होता है? परमेश्वर के ऊपर होता है, क्योंकि परमेश्वर जो है सारी चीजों का स्रोत है। और 2 में बोलता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। क्या बोलता है यहाँ पर? जो आकाश और पृथ्वी को जो रचने वाला परमेश्वर है उसकी ओर से क्या मिलता है? सहायता मिलता है। तो कई बार ऐसे हो जाता है कि हम विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते भी कई बार जो है हमारे पास जॉब नहीं होता, तो जॉब के लिए बहुत सारी चीज़ों में हम, है ना, ढूंढते हैं, परिश्रम करते हैं और खोजने की कोशिश करते हैं। भले हमारे पास छोटा जॉब हो सकता है, तो हम सोचते हैं कि अरे हमारे पास और थोड़ा बड़ा होना चाहिए, है ना, और हमारी उम्मीदें, हमारी सारी चीज़ें बढ़ जाती है। लेकिन क्या वही चीज़ें हम परमेश्वर की ओर लगाते हैं? क्या हम परमेश्वर की ओर निर्भर हो जाते हैं? चाहे हमारा जॉब छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है क्या हम परमेश्वर की ओर निर्भर है ना। तो क्योंकि याद रखना है, क्योंकि वही जो हमें संभालता है, वही जो हमें उपाय भी करके देता है, क्योंकि उसका नाम क्या है? उपाय करने वाला, यहोवा यिरे, है ना, उपाय करने वाला वो परमेश्वर है। चाहे हम कितना भी उपाय करें अपनी सामर्थ्य से, अपनी चीजों से, लेकिन हम उसको संभाल नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है 3 पंक्ति में बोलता है, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। और इज़राइल को बोलता है, सुन इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। और 5 में, यहोवा तेरा रक्षक है और यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमें वो सुरक्षा देता है, वो हमें उपाय करके देता है। पता है आपको, जब यूहन्ना की किताब उसका 10 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह बोलता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अभी चरवाहा वो है तो उसको पता है कि अपनी भेड़ों को कैसे खिलाना है। और कोई भी चरवाहा जो है ऐसे स्थान में लेके नहीं जाएगा जहाँ पर कोई खाने पीने की चीजें ना हो, है ना, अपनी भेड़ों को भूखा मरने नहीं देगा। वो ऐसे स्थानों में लेके जाएगा भेड़ों को जहाँ पे उनको खाने के लिए हो और वो खाकर जो है हष्ट पुष्ट हो जाए। तो यीशु मसीह जो है हमारा अच्छा चरवाहा है और वो हमारी जरूरतों को जानता है ना, और वो दूरी से समझ भी लेता है हमको कि हम क्या चाहते हैं, हमारे विचारों को भी वो जानता है। और जब उस अध्याय को पढ़ते हैं तो मैं जैसे एक चीज सोच रहा था कि परमेश्वर अच्छा चरवाहा है, तो हमारा वो ख्याल भी रखना जानता है और वो चाहता है कि भेड़ क्या हो, हष्ट पुष्ट रहे और वो आनंदित रहे, है ना। और जब आप सुलेमान के बारे में भी आप अगर देखेंगे, सुलेमान बोलता है समुपदेशक का 3 में और 13 में बोलता है कि मनुष्य खाए पिए, है ना, ये भी जो है अपने जीवन में जो भी वो परिश्रम करता है उसका शुभ भोगे, किसके ओर से है? परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमें जो भी देता है हम उसमें आनंदित रहना है और उसमें जो है हमें खुश रहना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक विश्वासी के बारे में नहीं सोचता परमेश्वर, हर एक मनुष्य के बारे में भी सोचता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि परमेश्वर सिर्फ एक विश्वासी के बारे में सोचता है, नहीं, अविश्वासी के बारे में भी सोचता है ना। तो यहाँ पे बोलता है यूहन्ना का 10 और 16 पंक्ति में बोलता है, और मेरी और भी भेड़ है जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। और भी लोग हैं जो बाहर खोए हुए हैं, परमेश्वर से दूर है ना, परमेश्वर की भेड़ के अंदर वो नहीं है, लेकिन परमेश्वर के बारे में सोचता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? उनको भी लेके आना चाहता है, ये झुंड में परमेश्वर उनको भी जोड़ना चाहता है। तो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है कि क्या करे, वो लोगों को भी, जो खोए हुए लोग हैं उनको भी है ना चर्च में, इस कलीसिया में लेके आना चाहता है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए? यहाँ पर सोचे एक विश्वासी की जिम्मेदारी क्या होना चाहिए। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा मत्ती का 28 में कि जाओ, है ना, सुसमाचार प्रचार करो, है ना, जगत के छोर तक जाओ। और क्या करना है? हमें गवाही देना है। क्या देना है? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, है ना, वो उद्धार करता है। और जब हम सुसमाचार बांटते हैं, जब वो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वो लोग भी जो है इस कलीसिया में और परमेश्वर के झुंड में जुड़ जाते हैं और परमेश्वर की देखभाल करना चाहता है ना। परमेश्वर विश्वासियों की भी चिंता करता है और अविश्वासियों की भी चिंता करता है, ताकि वो एक झुंड बनाना चाहता है और वही एक चरवाहा रहना चाहता है, ताकि वो हर एक मनुष्य की
जरूरत पूरी करना चाहता है। तो आज इस समय में आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि जो भी हम दान देते हैं, दशवान देते हैं, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ कलीसिया की जरूरत पूरी होगी। ये सोचिए कि जो लोग बाहर है ना, प्रभु से दूर है, उनको भी लाने के लिए मदद होगी। भले हम यहाँ पर है, हम सुरक्षित है ना, परमेश्वर जो हमें सुरक्षा देता है ना, हमारा रक्षक है वो, लेकिन परमेश्वर उनको भी सुरक्षा देना चाहता है, उनकी भी रक्षा करना चाहता है ना। परमेश्वर उनका भी परमेश्वर है, लेकिन वो जानते नहीं है ना। जब वो जानेंगे तब वो इस झुंड में आके प्रभु की महिमा करेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हाथों को खोलें, अपने हृदय को खोलें और प्रभु की सेवा के लिए अपने जो भी योगदान है वो दे, ताकि परमेश्वर उस योगदान के द्वारा जो है उसकी भी महिमा करके लेना चाहता है और प्राणों को भी जीतना चाहता है और कलीसिया की भी जरूरत पूरी करना चाहता है परमेश्वर। तो आइए अपने आंखों को बंद करते इस समय और अपने हृदय से, अपने मन से जो है सोचते हुए और ठानते हुए परमेश्वर के भवन में जो भी दान, विश्वास, फेथ मिशन जो भी हम देना चाहते हैं और पूरी उदारता के साथ दे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। गॉड, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। आप प्रभु हर एक व्यक्ति का ख्याल रखना जानते हैं परमेश्वर, और हर एक मनुष्य से आप प्रेम करते हैं जिस मनुष्य को आपने बनाया। और प्रभु विश्वासी की आप देखभाल करते हैं, उनकी भी जरूरत आप पूरी करते हैं और प्रभु उनके बारे में भी सोचते हैं, चिंता करते हैं प्रभु। और वैसे ही प्रभु जो आपसे दूर लोग हैं प्रभु, आप उनकी भी चिंता करते हैं प्रभु। आप चाहते हैं कि वो लोग इस झुंड में जुड़े और आपकी महिमा करें और वो भी सुरक्षित हो जाए, और प्रभु आप उनके साथ संगति करना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हम इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस कलीसिया की तमाम जरूरतें आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप सहायता करना और प्रभु हर एक जरूरत पूरी करना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए तमाम आपके भक्तगणों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब वो अपना हाथ, अपना हृदय प्रभु खोलते हैं आपकी महिमा के लिए, प्रभु आप बहुत ऐसे उनको इस्तेमाल करिए और बहुत ऐसे प्रभु उनको आप आशीषित करिए परमेश्वर। उनके जॉब में, उनके हर एक प्रभु जमा पूंजी में प्रभु आप उनकी प्रभु बढ़ोतरी करिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, अब एक गीत होगा।
Brother Gurman, बहुत अच्छा भेंट संदेश था गुरमन भैया से। Jesus said like go and tell the world परमेश्वर ने कहा जाओ और बताओ संसार को about His love. उसके प्रेम के बारे में। But what can happen like as when we became saved, क्या होता है जब हम बचाए जाते हैं? like we feel that now everything is done and we get relaxed in our life. हमें लगता है कि सब कुछ हो गया है और हम एकदम आराम हो जाते हैं, आराम जैसे लगता है। When we forget those words that Jesus said, और हम भूल जाते जो परमेश्वर ने कहा है हमें, what we are actually supposed to do, कि हमें जो करना चाहिए, that go and reach out to the world. कि हमें संसार के पास जाना चाहिए। Yes, it can happen to all of us. ये हमारे सबके साथ हुआ है And it happened in early days also. और ये पुराने टाइम पे भी हुआ है। And we need to keep on preaching this message again and again. और हमें इस संदेश को बार-बार प्रचार करना जरूरी है That we need to reach out to others. कि हमें दूसरों के पास पहुंचना है। Because today the world is lost completely. क्योंकि आज जो संसार है पूरी तरीके से खोया हुआ है। They don't have any direction in their lives. उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है जाने के लिए। And who can reach out to them? और कौन उनके पास पहुंच सकता है? The Bible says, how can a blind lead another blind? बाइबल कहता है कि अंधा एक अंधे को कैसे रास्ता दिखा They are सकता not the है। right person to lead them. वो सही इंसान नहीं है उनको The बताने one के who लिए। can lead them is we who can lead them. उनकी अगुवाई जो हम ही है जो कर सकते हैं। So the today's message, the topic which I am going to speak, आज का जो संदेश है जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ is about encouraging one another. वो प्रोत्साहन देना एक दूसरे को। Yes, over here, everyone who is seated here, यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं, somebody or the other must have encouraged you to come to church. कोई ना कोई तो होगा जो आपको प्रोत्साहन किया होगा कलीसिया आने के लिए। Don't be like nobody has encouraged you. That's why you came to church. ऐसा कोई नहीं होगा जो बिना प्रोत्साहन पाए आए हो। In my life too, somebody encouraged me, मेरे जीवन में भी ऐसे कोई थे जो मुझे प्रोत्साहन spent किए, time with me. मेरे साथ समय बिताए। That's why I came to know more and more about God's love. इसलिए मैं परमेश्वर के बारे में और जानने के लिए आया हूँ। So same way in everyone's life, तो ऐसी हर एक जीवनों में somebody has encouraged someone. किसी ना किसी को प्रोत्साहन दिया है। That's why we are here today in this church. इसलिए आज हम इस कलीसिया में So हैं। let's not forget this, तो हम ये भूले ना that we need to encourage one another. कि हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। So what does the Bible say? What type of the person we should all be? तो बाइबल क्या कहता है कि हमें कैसा बनना होना चाहिए? It's written in Hebrews chapter 10 verse 24 and 25. इब्रानी क्या 10, 24 और 25 में लिखा है। I'll read it in English for you. It says that, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So here this verse in Hebrews talks about the importance of fellowship. यहाँ पर जो इब्रानी का किताब जो है वो ये बताता है कि जो संगति है उसके महत्व के बारे में। It also talks about encouragement ये प्रोत्साहन के बारे में भी बताता है and supporting one another. और एक दूसरे को सपोर्ट करना। So here it is teaching us that we need to motivate one another. यहाँ पर बता रहे कि हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है। We need to stay connected together. एक दूसरे के साथ बने हुए रहना है। Not only just when there is any particular event, सिर्फ इसीलिए नहीं कि जब कब कुछ प्रोग्राम हो, but also during various times of fellowship. पर बाकी के संगति के समय पे भी, Because staying connected helps us in our spiritual growth. क्योंकि हमेशा हम जब जुड़कर रहते हैं तब वो हमें आत्मिक उन्नति में मदद करता है। And also it helps us to live one another. तो ये एक दूसरे के लिए रहने के लिए भी मदद करता है। One day what happened, one daughter एक दिन क्या होता है, एक बेटी goes and complains to mom अपनी मम्मी के पास जाकर शिकायत करती है that mommy I don't want to go to school. कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। So then the child does not tell why she does not want to go to school. पर वो बच्चा ये नहीं कहता है कि उसे क्यों स्कूल नहीं जाना है। But she said you go to school, don't worry, I'll have to go to school. पर मम्मी कहती है कि आपको
आपको जाना है, सबको जाना पड़ता है। Then again, after few days, he's saying, no, I don't want to go to school. कुछ दिन बाद वापस वो बेटी कहती है कि So मुझे then स्कूल she नहीं जाना। sits with the daughter and tries to find out तो मम्मी कहती उसके साथ बैठकर खोजती है कि क्या प्रॉब्लम है, what is the reason why my daughter does not want to go to school. कारण जानना चाहती है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती है। And daughter shares everything what's happening in the class. तो बेटी जो है वो बताती है कि स्कूल में क्या हो रहा है। That the teacher is always giving importance to some students. तो जो टीचर है वो कुछ बच्चों को इसे महत्व देते हैं And not giving any importance to me. और मुझे कोई महत्व नहीं देते हैं। Maybe because I am not too smart. हो सकता है कि मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ। And she feels very lonely in the class. उसको बहुत अकेला महसूस हो रहा है। She feels that she is left out. उसको लगता है कि वो पूरी तरीके से अलग है। So the teacher goes and meets. So the mother goes and meets the teacher. तो मम्मी जो है वो जाकर टीचर को मिलते हैं And share this problem with the teacher. तो टीचर से ये परेशानी के बारे में बताते The हैं। teacher says, I didn't deliberately do it. टीचर कहते हैं कि मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया है, But she said, I will talk to your daughter. बट उन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी से बात करती हूँ। And the teacher starts spending time with that child. तो टीचर जो है वो उस बच्चे के साथ समय बिताने लगते हैं। And very soon, within few days, there is improvement in the child. तो कुछ ही दिनों बाद उस बच्चे पे वो चीज़ें दिखने लगती है। So we see how encouragement can help others. तो हम देखते हैं कि कैसे प्रोत्साहन जो है दूसरे के जीवन में कार्य करता है। So encouragement is very important. प्रोत्साहन जो है वो बहुत ज़रूरी है। One day, pastor in his ministry, prison ministry. पास्टर जो है एक दिन जेल के मिनिस्ट्री में, So the church went along with the pastor. जो कलीसिया है जो पास्टर के साथ गए थे वहाँ, And there were thousands of prisoners over there. वहाँ पे बहुत सारे कैदी थे। So from their prison, they came to a big place, like a hall, और वो जो कैदी लोग जो वो एक हॉल में इकट्ठा हुए, and everyone was seated over there. सब लोग बैठे हुए थे। So as he was talking to those prisoners, तो जैसे वो बात कर रहे थे उस कैदी से, the pastor asked one question, तो पास्टर ने एक सवाल पूछा, that during your childhood, आपके बचपन में, he was asking those prisoners, उन कैदियों को पूछ रहे थे, whether your parents said that are you useless, क्या आपके माता पिता ने कभी कहा है कि आप कुछ काम के नहीं हो, and are you good for nothing? कि आप कुछ भी काम के नहीं हो। And if your parents had said these words, अगर आपके माता पिता ने ये कहा हो, can you please raise your hands? क्या आप हाथ उठा सकते हैं? And when he said this, तो जब उन्होंने कहा ये, he saw that almost all the prisoners raised their hands. तो देखा कि बहुत सारे कैदी लोग ने हाथ उठाए। So we see how words can affect somebody's life. तो हम देखते हैं कि कैसे शब्द जो है दूसरे के जीवन में, Because they were hearing these negative words throughout their life, क्योंकि ये जो नकारात्मक शब्द जो हम सुनते रहते जीवन में, that you are useless, कि आप कुछ काम के नहीं हो, that you are good for nothing, कि आप कुछ भी अच्छे नहीं हो, and that impacted their identity. तो वो उनका जो पहचान लेकर आता They है, grew up in this a negative feeling all throughout their life. तो उनके जीवन में वो नकारात्मक ही पैदा होकर बड़े होते हैं। They felt that they had no value for their life. उनको लगता है कि उनके जीवन में कोई मूल्य नहीं है, They had no purpose for their life. उनके पास कोई उद्देश्य नहीं है, Remember that words have power. क्योंकि उस शब्द में जो है वो अपना सामर्थ्य है। Because Proverbs 18 verse 21 it says that the tongue has power of life and death. That the tongue has power of life and death. So the words which are spoken on someone, तो जो शब्द जो है वो हम एक दूसरे को जब कहते हैं, especially during their childhood, सबसे ज़्यादा जब वो छोटे रहते बचपन में, it can either build them up वो उन्हें बढ़ाता है or it can tear them completely down. या उनको पूरी तरीके से नाश कर देता So we है। see that negative words are those words that create wounds in people's life. जो नकारात्मक शब्द जो होता है वो लोगों के हृदय में जो है घाव पहुंचाता But है, encouragement word, what it does, it brings healing and hope for them. बट जो प्रोत्साहन शब्द है वो हृदय को जो है पूरी तरीके से हीलिंग लेकर आता So है। far we have seen that how encouragement can change people's lives. तो हम देख सकते हैं कि चंगाई का जो है वो कैसे वो शब्द जो है लेकर आता है। We see that many these prisoners who are there in prison,
if they had heard words, good words from their parents, अगर उनके जो कैदी लोग थे उन लोग ने अगर उनके माता पिता से कुछ ऐसे शब्द सुने होते, they would have become a completely different people. कोई अच्छा शब्द सुने होते तो वो पूरी तरीके से अलग होते। If they had heard words like that you are loved, कि वो उन्होंने ऐसा सुना होता कि वो प्यार किए गए हैं। if they had heard words from their parents that you have a purpose in your life, अगर उन्होंने सुना होता कि आपके जीवन में उद्देश्य है, or words like that God has a better plan for you, ऐसा शब्द कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, they would have never landed in that prison that day. वो वहाँ पर उस जेल में कैदी बनकर नहीं बैठे होते। So we see that encouragement can restore broken lives, जो प्रोत्साहन शब्द जो है वो जो टूटी हुई जीवन को बनाता है and it gives strength to people to make better choices in life. और वो हमें जो जीवन में जो है अच्छा चुनौती करने में मदद करता है, Because God sees worth in everyone. क्योंकि परमेश्वर जो है वो हर किसी में वो देखता है, अच्छी चीजें देखता है। As we heard in the offering message, जैसे हम भेंट संदेश में सुने थे that God loves everyone. कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। See in Jeremiah 29 verse 11, यिर्मयाह का 29 वर्ष 11 में it says that I know, God is here saying that I know the plans for you. परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूँ आपकी जीवन की योजना। Here God is declaring, यहाँ पे परमेश्वर घोषणा कर I रहा है, have plans to prosper you मेरे पास योजना है तुम्हें बढ़ाने के लिए, and not to harm you. आपको चोट पहुँचाने के लिए नहीं। Plans to give you a hope and a future. जो योजना है वो आपको आशा देने के लिए और भविष्य देने के लिए। Today the world may call you anything by names. आप इस संसार में आपको बहुत सारे नाम से पुकार रहे होंगे लोग। If you are not smart, they will call you donkey, अगर आप स्मार्ट नहीं हैं तो आपको गधे बुलाएंगे, and they will call you anything or useless person. आपको कुछ काम के नहीं ऐसे कहेंगे। But remember that God loves you. पर याद रखना कि परमेश्वर आपसे प्रेम No करता matter है। what people may call you by names, मायना नहीं रखता कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, किस नाम से बुला रहे हैं, God still loves you. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम And करता He is offering His forgiveness है और उसका जो भेंट है वो आपको क्षमा करने का है, and gives you hope and a new beginning. आपको आशा देने और एक नई शुरुआत की। In the Bible, there is a story about Barnabas. बाइबल में बारनबास का एक कहानी है। Maybe many of over here have not heard this story. यहाँ पर कुछ लोग उसके बारे में नहीं जानते It होंगे। is in the book of Acts. ये बुक Book of Acts. ऑफ एक्ट्स। So, like when people, when we are born, जब हम or when we grow up, जब हम पैदा होते हैं या जब हम बढ़ते हैं, so people like to give nicknames लोग जो है वो प्यार से कोई नाम रखना चाहते हैं, because everyone wants to give a short name or any name. लोग जो है छोटा नाम या प्यारा नाम कुछ रखना अच्छा पसंद करते हैं। I don't know about your nickname, but I'm talking about Barnabas. हम यहाँ पे बारनबास की बात करते हैं। So his real name was actually Joseph. उनका जो असली नाम जो था वो जोसेफ था, But why he was called Barnabas? पर उसको बारनबास क्यों कहा गया? Because the meaning of the word Barnabas is a encourager. बारनबास का मतलब ये होता है कि प्रोत्साहन करने वाला। So people had seen him like he was always encouraging others, लोगों ने देखा है कि वो हमेशा लोगों को प्रोत्साहन करता था, and that's why they called him Barnabas. इसीलिए लोग उन्हें बारनबास कहते हैं। So today people give lot of importance to names, आजकल जो है लोग बहुत ही महत्व देते हैं नाम को, and that's why nickname also they will call you accordingly. तो इसीलिए छोटा प्यारा नाम भी आपको उसी के अनुसार देते हैं। So here Barnabas, if you read in the book of Acts, अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स में पढ़ते हो बारनबास के बारे में, chapter verse 36 and 37, the apostle they called him Barnabas. The apostles they nicknamed him Barnabas. जो अपोस्टल्स है वो बारनबास को नाम दिए, Because here what happens, the apostles were in need of money, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि अपोस्टल्स जो है उनको पैसे की जरूरत था। and here Barnabas decides that I have a place filled with pig, और बारनबास कहते हैं कि मेरे पास कुछ जमीन है which I will sell, जो मैं बेचूंगा, and he sold that and he gave money to the apostles, और वो उसे बेचता है और अपने वो अपोस्टल्स को जो है पैसा देता so है, that that money can be used for God's work. ताकि वो जो है पैसा जो परमेश्वर के कार्य के लिए यूज हो सके। The apostles saw it
and he knew, they understood that he wants to encourage. इसमें पता चलता है कि अपोस्टल जो देख रहे थे कि बारनबास जो है उसके पास प्रोत्साहन करने वाला चीज़ था। So Barnabas had a very special, unique gift that is of encouragement. बारनबास के पास जो था एक अलग ही गिफ्ट था He encouraged people wherever he went. कि वो हर एक लोगों को प्रोत्साहन करता था जहाँ भी वो जाए। So there are two types of people you will meet in your life. तो आप जो है दो तरीके के लोगों को आपके जीवन में मिलेंगे। The first person, that type of person you will meet in your life, पहला जो है वो is the people who will encourage you. वो लोग जो आपको प्रोत्साहन करेंगे। And the second type of people you will meet in your life और दूसरे जो है are the people who will discourage you. वो वैसे लोग हैं जो आपको निराश करेंगे। And mostly you will meet people in your life who are always discouraging. और आप ज्यादा करके ऐसे लोगों को मिलेंगे जो आपको निराश करने वाले You हैं। must have realized, like whenever you tell your ideas or you tell some of your plans, आपने देखा होगा कि आपने कोई योजना बताया होगा या कोई आइडिया बताया होगा, immediately they will say, "Arey, this is not going to work." वो तुरंत बताएंगे ये तो कुछ काम करेंगे So and you are immediately discouraged. और आप तुरंत निराश हो जाते हो। So these are the types of people you will always meet. ऐसे लोग हमें हर समय मिलते रहेंगे। So discouraging people, don't think that you will not meet in church. निराश करने वाले लोग हमें कलीसिया में नहीं मिलेंगे। You will get discouraging people everywhere. निराश करने वाले लोग जो है वो You'll get discouraging people in church, in school, college, or at your workplace. वो वहाँ पे आपके काम की जगह पर, स्कूल में, हर जगह पर आपको मिलेंगे। So like for example, if Bharti is singing, जैसे कि मैं गाना गाती हूँ, suppose she is singing for the first time, अगर मैं पहली बार गाना गा and रही she हूँ knows that she did a good job. पर मुझे पता है कि मैंने अच्छा काम किया है, But what if somebody comes and tells Bharti, "No, I didn't like your singing." ऐसा कोई है जो आकर मुझे कहे कि आपने अच्छे से गाना नहीं गाया, Do you think she will come and sing for the next time? क्या आपको लगता है मैं वापस आके गाना गाऊंगी? No, those words have discouragement, नहीं, वो शब्द जो है वो काफी चोट हो जाए has broken her heart. And she makes a decision not to sing again. तो मैंने जो है वो निर्णय लिया कि मैं वापस कभी गाना नहीं गाऊंगी। Yes, we are going to meet such discouraging people in our life. तो ऐसे जो निराश करने वाले लोग हमारे जीवन में And मिलते we need to रहेंगे, be careful what we listen. इसलिए हमें क्या सुन रहे हैं वो उसके ऊपर ध्यान लगाना And चाहिए। don't ever think that you can escape from such people in your life. और आप ऐसे मत सोचना कि आप ऐसे लोगों से भाग निकलोगे, Because Satan will try to put more discouragement next time. क्योंकि शैतान जो है और भी निराश करने वाले लोगों को आपके जीवन में लेके So आएगा। let's remember one thing, the encouragement comes from God तो याद रखिए जो प्रोत्साहन जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है and discouragement comes from the devil. और जो निराश चीजें हैं वो शैतान की ओर से आता है। Yes, discouragement can be bad at times जो निराश चीजें हैं वो बहुत बुरी हो सकती है समय because पर, that is a tool which the devil is using these days क्योंकि वो एक ऐसा सामग्री है जो शैतान इस्तेमाल करता है and brings various kinds of problem in our lives. और बहुत सारे उसी के द्वारा परेशानी लेकर आता है हमारे जीवन में। Yes, today maybe somebody in this room is already discouraged हो सकता है इस कमरे में ऑलरेडी जो है कोई निराश होगा or had a very discouraging week last week. या कुछ निराश भरे हफ्ता होगा उनसे But गुजरा all we होगा। need to remember पर हमें याद रखना है that we have a God हमारे पास ऐसा परमेश्वर है, and we have some godly people हमारे पास ऐसे परमेश्वर के लोग हैं whom we can go जहाँ पर हम जा सकते हैं उनके and पास get an encouragement from. और प्रोत्साहन पा सकते हैं। In 1 Thessalonians पहला तस्सलोनियन chapter 5 verse 14, 5वां अध्याय वचन here it is telling, this verse is telling all of us that we need to do something. इस वचन जो कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए। Here the verse is saying that we need to encourage those who are disheartened. हमें प्रोत्साहन देना है वो जो निराश भरे हृदय के साथ है। We need to help those who are weak. हमें उनकी मदद करना जो कमजोर है। We need to be patient with everybody. हमें सबके साथ पेशेंस के साथ रहना है। So here the Bible is telling to each one of us यहाँ पर बाइबल सभी को कह रहा है that we all need to be encouragers. कि हम सभी को प्रोत्साहन करने वाले बनना है। To encourage one another, प्रोत्साहन करना एक दूसरे को, to be patient. पेशेंस रहना है। See, we will always try to find defect in other people. हम हमेशा जो है दूसरे में कमी
देखते हैं। Whenever we try to find a defect in other people, जब हम दूसरे की कमी देखते हैं, let's remember the first thing that we are not perfect. हमें ये याद रखना है कि हम खुद सिद्ध नहीं है। So we just saw that how Barnabas was encouraging others. हम देखते हैं कि बारनबास कैसे एक दूसरे को कैसे प्रोत्साहन दे रहा था। So in order to encourage others, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए first we need to find out who needs this encouragement. ये जानना जरूरी है कि किसको प्रोत्साहन की जरूरत है। During the time of Barnabas, बारनबास के समय पे in Acts chapter 1, प्रेरितों का काम 1 में what happened during those time, there was lot of persecution among all the Christians. All उस the समय Christian पे जो people. था बिलीवर्स जो विश्वासी है उनके ऊपर बहुत सारे आक्रमण होते थे। So if you are a Christian during that time, अगर आप उस समय में कोई विश्वासी होंगे, people used to come in their houses. वो आपके घर में आके They used to steal and they used to rob your houses. चोरी करते थे घर की हर एक चीजों को। So what the people, the Christian people used to do during those time, तो उस समय पे जो विश्वासी क्या करते थे, they used to go and hide in caves वो लोग गुफाओं में जाके छुपते थे or some secret places so that people should not know where you are, या ऐसे कोई जगह जो गुप्त जगह जहाँ पर लोगों को पता ना चले, because they were afraid of those authorities. क्योंकि उस जमाने में उस चीजों का उनको डर था। Because if they find out if you are a Christian अगर उन लोगों ने आपको पहचाना कि आप विश्वासी हो and if you are caught, और आप पकड़े गए, then you are gone, you are put to death. तो आप मारे जाएंगे। So during this time, Barnabas, तो इस समय पे बारनबास जो था, like as the apostles were going to preach, जैसे अपोस्टल लोग जो प्रचार करने जा रहे थे, they knew like they needed money. उनको पता था कि उनको पैसे की जरूरत And है। as I already told that Barnabas sold his piece of land तो जैसे मैंने कहा कि बारनबास ने जो अपनी जमीन को बेचा, and he gave it to the apostles उन्होंने अपोस्टल को दे दिया so that the money can be used for God's work. ताकि वो जो पैसा है परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल हो। See, everyone cannot do like become a missionary and go. हर एक लोग जो है सेवकाई नहीं कर सकते हैं। Same thing, Barnabas knew what his gift is. वैसे ही बारनबास जानता था उसका तोहफा क्या है, That's why he approached the apostles इसलिए उसने अपोस्टल को कहा, and gave them money. उनको पैसा दिया। Same thing in our church too. हमारे कलीसिया में भी Today we all cannot be on a mission field. हम सब एक मिशन नहीं बन सकते हैं, But thanks like to our church, पर हमारे कलीसिया को धन्यवाद which is supporting the missionaries. जो मिशनरीज को सपोर्ट करता है। And today we have missionaries all over India. हमारे पास जो पूरे इंडिया में पूरा मिशनरीज है, You मिशंस may है, be not knowing हमें पता नहीं होगा like the what you give to God, जो हम परमेश्वर को देते हैं, but indirectly you are supporting this missionaries. हम जो है एक तरीके से मिशनरीज को सपोर्ट कर रहे And हैं through this missionaries, the gospel is reaching to various places in all over India. और इस तरीके से मिशनरी के द्वारा शुभ संदेश जो है पूरी दुनिया में फैल रहा है। So like we may think like what have I done, like no, I have not done anything. हमें लगता होगा कि मैंने तो कुछ किया नहीं, But when we go to heaven, पर जब हम स्वर्ग जाएंगे we will see this. हम देखेंगे। Like for example, like there may be some person coming to you and meeting you in heaven. ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो स्वर्ग में आपको आके मिलेगा, He will say thank you for supporting this missionary. धन्यवाद आपने इस मिशनरीज को सपोर्ट किया, Because of that, your support to that missionary, बिकॉज क्योंकि आपने उस मिशनरी को सपोर्ट किया, the gospel was preached in our village, उस जो संदेश है, शुभ संदेश है, वो हमारे गांव में फैला गया and I got प्रचार saved किया that day. और उस दिन में बचाया गया। So like it will be a surprise for all of us. और ये हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ा अचंभित समय होगा। In fact, you will be surrounded by so many people over there. आप स्वर्ग में इतने सारे लोगों के साथ घेरे रहेंगे Like they are thanking you. कि वो आपको धन्यवाद करेंगे। So just expect a lot of surprises when you go to heaven. तो आप ये चीज का एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जब And स्वर्ग let's जाओगे continue like supporting our missionaries. तो बहुत कुछ चीजें होगा। तो हम So what इसलिए- Barnabas did was not easy. जो बारनबास ने किया वो इतना आसान नहीं था। Do you think like it's easy like to sell a big piece of land and give money? इतना बड़ा जमीन को बेचकर पैसा देना इतना आसान नहीं था उसके लिए। Like today, if somebody tells you like to sell a property and give, अगर आज आप किसी को कहोगे कि जमीन बेचकर पैसा देने, do you think you will sell it easily? क्या आप बेचोगे आसानी से?
But what made Barnabas to sell and give it पर to? क्या चीज है जो बारनबास को बेचने के लिए प्रोत्साहन किया? It is like love of God. परमेश्वर का प्रेम। It's like he was getting daily encouraged by God. वो जो है वो रोज परमेश्वर के संदेश से वो वचन से वो प्रोत्साहन पाता था। Today, like if we not encouraged by God, अगर आज हम परमेश्वर से प्रोत्साहन नहीं पाते हैं, we cannot encourage other people. हम दूसरे को प्रोत्साहन नहीं दे So सकते। the first thing is like we need to get encouraged by God, तो हमें पहला प्रोत्साहन पाना जरूरी है परमेश्वर से, and then only we will be able to encourage others. फिर ही हम दूसरे को प्रोत्साहन दे सकते हैं। So I want to tell you something. तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। It's not what that is kept in the barn that multiplies. ये ऐसा कोई चीज नहीं है जो रखी हुई है जो अपने आप दुगना होगा, And but what that sows that multiplies. पर जो बोया गया है वो दुगना होगा। So it's very important that we sow in God's kingdom. तो ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के भवन के लिए बोए। Barnabas could have lived his life full of luxury. बारनबास जो है वो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जी सकता था। He could have said like, why should I give this money? वो बोल सकता था कि मैं क्यों पैसा दूँ, Let's have a life full of luxury. पूरी जिंदगी जो है अच्छे से जी सकता हूँ। But he used his money wisely पर उसने उसका पैसा जो है बहुत ही बुद्धिमान तरीके से because इस्तेमाल किया, what he wanted to do was use his money for God's glory. क्योंकि वो जो उसका पैसा जो है परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। So we need people like Barnabas today. तो आज हमें बारनबास जैसे लोग And चाहिए, in fact, we all can become like Barnabas. और हम खुद बारनबास जैसे बन सकते हैं। And we should go in need of searching the needy people. और हमें जाकर खोजी करना है उन खोए हुए लोगों को। Today in newspaper or news or wherever you go in market, आज हम अखबार में, मार्केट में, हर जगह में देखते हैं, or the ladies when they go to the vegetable shop or in the grocery store, जो स्त्री जो है वो बाहर जब भाजी लेने वगैरह जाते हैं, they'll say that, oh, yesterday this product was selling, dal was selling for 50 rupees. कल जो है दाल जो है 50 रुपए में बेच रहे थे, And today it's become double, 100 rupees. आज जो है वो दुगना हो गया 100 रुपए में। And they are filled with fear. और जो है वो पूरी तरीके से डर जाते, So बेचैन। what Satan is trying to do is trying to put fear. तो शैतान क्या करना चाहते हैं? वहाँ पर डर पैदा करना With चाहते the हैं। increasing prices of everything, सारे चीजों का मूल्य जो बढ़ाकर he's trying to put fear in our lives. वो हमारे जीवन में परेशानी और डर लेकर आना That चाहते हैं। moment we start thinking, उस समय पे हम सोचने लगते हैं, if I give for God, अगर हम परमेश्वर को देंगे, how am I going to survive? मैं कैसे जीऊंगा, What will happen in the future? क्या होगा भविष्य में। But let's pause for a while. पर हम रुकना चाहिए थोड़े समय। Maybe you have something more to give more than money. ऐसा कोई चीज है जो पैसे से भी बढ़कर है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। Maybe there is somebody who is rejected हो सकता है कोई जो है रिजेक्ट हुए हैं, or going through some problem in their life. जो परेशानी से गुजर रहे हैं। Maybe you spend your time with them हो सकता है आपके समय उनके दे सकते हैं, आप and love them. प्यार कर सकते हैं। Or maybe there is a neighbor who is in need of something, या फिर कोई होगा जिनको जरूरत होगा, or you can just go and meet them and talk to them. आप जाकर उनसे बात कर सकते हो। Or if an elderly couple is there in this room, यहाँ पर कोई है जो शादीशुदा जोड़े हैं, elderly couple, they may feel that I cannot give anything to God, उनको लगता होगा कि शायद मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ परमेश्वर को, but you can give your time. बट आप आपके समय दे सकते हो। Because there are so many youth in this world or over here. यहाँ पर बहुत सारे युवा है संसार में, यहाँ पर भी You can counsel them. उनको आप काउंसिल कर सकते हो। Maybe a young somebody got married. जो युवा जो है जो अभी विवाह हुए हैं उनका, You can counsel them. उनको आप काउंसलिंग कर सकते So हो। the list can go on and on. जो लिस्ट है वो ऐसे ही चलता जाएगा। And this list covers each and everyone in this place. ये लिस्ट है ये पूरी इस जगह में सभी के लिए है। So we all can do something to encourage हम others. सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए। One day when our lives are over, एक दिन जब हमारा जीवन समाप्त होगा, what you did for others जो आपने दूसरों के लिए किया है will never be forgotten. वो कभी भूला नहीं जाएगा। So we see that Barnabas, he loved to encourage people. जैसे हम देखते हैं बारनबास जो है वो लोगों को प्रोत्साहन करना बहुत पसंद करता था।
And that's why he was given the name Barnabas, इसीलिए उसका नाम बारनबास था। which means encourager. इसका मतलब है कि प्रोत्साहन करने वाला। Yes, in order to encourage someone, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए first we need encouragement from God. हमें परमेश्वर से एंकरेजमेंट पाना है, प्रोत्साहन पाना है। During Barnabas' time, like Apostle Paul had just been converted from Saul to Paul, जो पॉल जो था उस समय पे सॉल से पॉल हुआ था। and as you know, like Saul was he was called Pharisee of the Pharisees. जो सॉल जो था वो आप जानते हो कि उसको फरीसी का फरीसी कहा जाता है। And Saul, what he used to do? Suppose you are a Christian, he used to persecute the Christians. अगर आप विश्वासी हो तो सॉल क्या करता था? उन्हें बहुत परेशानी देता था। He used to not even spare the ladies, the women. वो स्त्री को भी छोड़ता नहीं था। So like he was such a bad person. वो बहुत ही बुरा आदमी था। So everyone feared Saul that time, उस समय पे सॉल को सभी लोग डरते थे and everyone had heard about him. और उसके बारे में सभी लोग ने सुना है। So when Saul became Paul, जब सॉल जो है पॉल में बदला गया, when he became a Christian, when Jesus he had an encounter with Jesus, वो विश्वासी में बदला जब वो परमेश्वर को happened. Nobody was ready to accept Paul तो उसी तरीके से लोग जो है उसे अपनाना नहीं चाहते थे because पॉल, of his past record. क्योंकि उसका जो पिछला जो भी उसने किया उसके वजह से। Same thing like when a new believer comes, वैसे ही जब एक नया विश्वासी आता है, nobody wants to accept him. कोई नहीं चाहता उसको अपनाना। Everyone sometimes if the record is not good, अगर उनका कुछ अच्छा नहीं है so people try to stay away from him. उनसे लोग दूर रहना पसंद करते हैं। But Paul, he knew Barnabas knew Paul, बट बारनबास जो है पॉल को जानता था, and he went over there वो उसके पास गया and he spoke to the people over there. और वो उन लोगों से बात किया। That Apostle Paul has now changed, जो पॉल है वो अभी बदल चुका है, and he is no longer the same person. वो अभी पहले की तरह नहीं है। So here Paul is encouraging others, तो यहाँ पर जो है पॉल जो है दूसरे को प्रोत्साहन कर रहा है, and because of him, the people were ready to accept Paul. इसीलिए जो है He led them to Paul so that Paul could lead them properly, वो लोगों को पॉल की ओर भेजता था ताकि पॉल अगुवाई कर सके, because he knew that Paul had a hidden talent in him, क्योंकि पॉल के पास ऐसा एक गिफ्ट था, and he had the abilities to develop others. उसके पास एक ऐसा चीज था कि दूसरे को बढ़ा सके। So we see and this same person Paul, वही जो पॉल जो है whom Barnabas encouraged, बारनबास जिसे प्रोत्साहन किया, later on wrote so many books in the Bible. बाद में उन्होंने बहुत सारे किताब लिखे बाइबल में। Almost the entire New Testament you can see it's all written about Paul. जो हम देखते हैं कि नया नियम जो है पूरी तरीके से पॉल से लिखा गया है। So we need people like today, Barnabas in our life, तो हमें भी बारनबास जैसे लोगों की जरूरत है who can encourage others. जो दूसरों को प्रोत्साहन दे सके। So let's be as we have heard in the offering, let's go out. तो जैसे हमने भेंट संदेश में सुना कि हमें जाना है, Wherever we are, whether we are in school, whether we are in college or workplace, जहाँ कहीं भी हो, चाहे वो काम पे हो, स्कूल में हो, जहाँ भी and हो, let's search for people who have failed in their lives. हमें ऐसे लोगों का खोजी करना जो अपने जीवन में बहुत सारे परेशानी में है या खो गए हैं, Who are leading a very lonely and depressed life. जो हम जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। So the conclusion is आखिरी में that each of us can be Barnabas today. आज हम जो एक दूसरे को जो है बारनबास जैसे रह सकते हैं And let's continue to encourage one another. और एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकते हैं। Amen. Pray. Father God, we want to thank you, Lord, for this beautiful day, O Lord. परमेश्वर धन्यवाद करते सुंदर सभी के लिए। Yes, Lord. We believe, O Lord, that you have great plans for each one of us, O हम Lord. विश्वास करते परमेश्वर आपके पास हमारे लिए अच्छा योजना है विश्वास। As we have just heard in the word, O Lord, जैसे हमने अभी वचन में सुना, that you have great plans for each one over here. आपके पास हर एक अच्छी योजना है हम सभी के लिए।
Yes, Lord. We pray also for those who are not here right now, Lord. हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो यहाँ पर अभी नहीं है परमेश्वर, Pastor and his family, O Lord. पास्टर और उनके परिवार के लिए, And all those church members who are not here right now in our midst. और गरीब लोग जो हमारे कलीसिया के लोग जो यहाँ पर नहीं है, Yes, we pray, Lord, that you keep on encouraging us, O Lord, हम प्रार्थना करते कि आप हमें प्रोत्साहन करते रहना हर so समय, that we can encourage others also. ताकि हम दूसरे को प्रोत्साहन कर सकें। Thank you, Lord, for your love in our lives, O Lord. धन्यवाद यीशु मसीह आपके लिए। Yes, your love is everything that we need in our lives, O आपका Lord. प्रेम ही काफी है परमेश्वर हमारे जीवन It is में। because of your love that it encourages us, O Lord. आप ही के प्रेम की वजह से हम प्रोत्साहन पाते हैं यीशु। Otherwise, without you, we had no hope, no future, nothing, O Lord. आपके बिना हमारे पास कोई आशा नहीं, कोई जीवन नहीं है। Thank you, Lord, for being with each one of us, O Lord. धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे सबके साथ रहते हैं। Continue to be with each one of us, O Lord. हम सभी के साथ रहना परमेश्वर। Also, we pray for our upcoming week or ahead, O Lord. हमारे आने वाले सप्ताह के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। We believe, O Lord, that you are going to be throughout this week, O Lord, हम विश्वास करते हैं कि आप हमें अगुवाई करोगे इस पूरे सप्ताह में, encouraging us, O Lord, हमें प्रोत्साहन करते हुए and helping us to encourage others, O Lord. और हमें मदद करने के लिए दूसरे को प्रोत्साहन करना। Yes, Lord, we pray that you send people in our lives, O Lord, हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को लेकर आना हमारे जीवन में, who needs your love, O Lord. जो आपके प्रेम को भी खोज रहे हैं परमेश्वर। Once again, Lord, we want to thank you for this beautiful time, O Lord. इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं We परमेश्वर। pray for all the church needs, O Lord, हमारे कलीसिया की हर एक जरूरतों के लिए प्रार्थना करते and we हैं। believe that you will provide for all our needs. विश्वास करते हैं कि आप उपाय करोगे हमारी जरूरतों के लिए। Give us a beautiful time and a week ahead, O Lord. हमें अच्छे समय देना परमेश्वर, In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Mighty is our God, mighty is our King, mighty is our Lord, the ruler of everything. Glory to our God, glory to our King, glory to our Lord, the ruler of everything. His name is higher, higher than any other name. His heart is greater, He has created everything. Mighty is our Lord, mighty is our King, mighty is our Lord, the ruler of everything. Glory to our God, glory to our King, glory to our Lord, the ruler of everything. His name is higher, higher than any other name. His heart is greater, He has created Yes, बहुत अच्छा संदेश है ना। तो बरनबास जो है प्रोत्साहन का व्यक्ति है। जैसे मैं सोच रहा था कि जैसे विधवा ने, उसके पास 2 ही दमड़ी थे, लेकिन उसने क्या किया, भवन में डाल दिया। और वहाँ पर यीशु मसीह उसके देख रहा है ना कि वो किस रीति से दान दे रही है, और यीशु मसीह उससे प्रोत्साहन कर रहा है। तो जब जब हम भी देते हैं परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर हमें भी प्रोत्साहन देता है, और हमारे देने से दूसरों को भी परमेश्वर क्या करता है, प्रोत्साहन देता है। तो आइए, देते रहिए और प्रभु के वचन को बांटते रहिए और आगे बढ़ते हैं। यस, तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं गॉड, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं गॉड, जो हमने संदेश सुना है परमेश्वर, उस वचन को प्रभु हम अपने हृदय में
लागू करने के लिए मदद करना गॉड। और जब यहाँ से हम जाते हैं प्रभु पूरे हफ्ते में परमेश्वर आप हमसे बात करना, क्योंकि जिसे हमने वचन में पढ़ा परमेश्वर कि आप हमारे रक्षक है, आप हमें सुरक्षा देते हो, आप हमें प्रोत्साहन देते हो, आप हमें उपाय करते हो, और प्रभु हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रोत्साहन के लिए इस्तेमाल भी करते हो गॉड। धन्यवाद देते हैं आपकी महान प्रेम के लिए, महान अनुग्रह के लिए जो आपकी हम देह में हैं, आपके लिए की हिस्सा है प्रभु। आप इस कलीसिया के सील हो और आप बेहतर रूप से जानते हैं प्रभु बढ़ाना और इस्तेमाल करना। धन्यवाद देते हैं कलीसिया के तमाम भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं, और यहाँ पर जितने लोग हैं प्रभु हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु हमारे चरवा जो भी समय बाहर है तो उनको भी प्रभु आप प्रोत्साहन देना, और पूरे हफ्ते में प्रभु हम आप में बढ़े, आपकी महिमा कर सके और आपके नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। यदि हमारे बीच में कोई बीमार हो या कुछ कठिनाई से गुजरता हो प्रभु, आप उनकी सुधि लेना परमेश्वर, आप उन्हें चंगाई देना और आत्मिक चंगाई देना, शारीरिक चंगाई देना। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। और आज की जो सभा आपने आशीषित किया शुरू से लेकर अंत तक, धन्यवाद देते हैं। और आगे का समय, ये पूरा दिन और आने वाला पूरा हफ्ता आपके हाथों में सौंपते